Hello friends, welcome to Binocular. Today we will study about plant cell. So let's get started. In this video we will see the different structure of a plant, internal anatomy of a leaf, parenchyma tissues present in its epidermis and the plant cell present into that tissue. We will study the plant cell and its component in detail. This is a plant. The plant is mainly divided into root, stems, and leaf. The part above the ground is called shoot system, and part below the ground is called root system. Now see the internal structure of a leaf. So this is the internal structure of a leaf. Internally, leaf is divided into outermost layer epidermis on both the surface, that is upper epidermis on lower epidermis. This epidermis is covered by cuticle. Between the upper epidermis and lower epidermis, cortex region is present. In leaf, cortex region is divided into upper pellicid tissues and lower spongy tissues, and between them vascular system is present. तो अगर अपन लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में कॉर्टेक्स रीजन प्रेजेंट होता है. उसमें दो तरह के टिश्यूज होते हैं और सेल्स होते हैं, ऊपर पेलिसेड और नीचे स्पॉन्जी टिश्यूज, और बीच में वेस्कुलर सिस्टम होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं. नाउ वी विल सी द टिश्यू सिस्टम which organize the structure of leaf. So we will see the tissue of epidermis layer. In epidermis mainly parenchyma tissues are present. So this is the structure of parenchyma tissues. These are green in color. Their main function is storage of the food material. Tissues organize organ. Many plant cells grouped together to form different type of tissues. So now we will see the individual structure of a plant cell. बहुत सारे सेल्स बन के टिश्यू बनाते हैं. वो टिश्यू अलग अलग जगह पर डिफरेंट प्रोपोर्शन में अलग अलग ऑर्गन्स बनाते हैं जिससे वो पूरी प्लांट बनती है. Now here is the detailed structure of a plant cell. The main feature of the plant cell in comparison to animal cell is presence of a rigid cell wall and presence of a large central vacuole and presence of chloroplast. अगर अपन एनिमल सेल के कंपैरिजन में प्लांट सेल देखें तो इसमें एक बाहरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एक लार्ज सेंटर में वैक्यूल प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. ये तीनों स्ट्रक्चर एनिमल सेल में नहीं होते हैं. प्लांट सेल में डिफरेंट माइक्रोबॉडीज भी प्रेजेंट होती है जैसे परोक्सिसोम्स, ग्लाइओक्सिसोम्स एंड स्पिरोसोम्स. अदर स्ट्रक्चर लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, mitochondria, cell membrane, ribosomes and cytoplasm and nucleus are common. जैसे एनिमल सेल में जो स्ट्रक्चर्स होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी apparatus, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में कॉमन होती है और इनके फंक्शंस भी रफली सेम होते हैं. मेन जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है प्लांट सेल वॉल, वो प्लांट सेल को एक डेफिनेट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी यूजफुल होती है. It also support apoplast pathway for water movement. Chloroplast is a double membrane bound cell organelles. It is site for photosynthesis. क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज है. यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है. फोटोसिंथेसिस की लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों इसी में होती है और इसी में खाना बनता है. सो plant are the primary producers of food. Plant
सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको फूड में कन्वर्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। एंड प्लांट सेल हैज ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। इसी की वजह से जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल होता है, मतलब साइड में प्रेजेंट होता है। अदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो प्लांट एंड एनिमल सेल में कॉमन होते हैं, उनका सेम फंक्शन होता है, लाइक न्यूक्लियोलस फॉर्म राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। साइटोप्लाज्म is site for all the metabolic reaction where all the organelles are present. Mitochondria is for cellular respiration and formation of energy. Golgi apparatus is helpful in protein sorting and transport of material. And nucleus, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर भी प्लांट और एनिमल सेल में ऑलमोस्ट सेम होता है, जिसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन मटेरियल एंड न्यूक्लियोलस. So this is the structure of nucleus, and inside nucleus DNA is present. This is DNA which is double helical. Both strand of DNA is joined by nitrogenous base. ये नाइट्रोजिनस बेस हैं 4 जो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में, जिनमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन है। एडेनिन पेयर विथ थाइमिन एंड ग्वानिन पेयर विथ साइटोसिन, और इनकी मेन बॉडी राइबोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ी हुई होती है। दीज डीएनए अलॉन्ग विथ हिस्टोन प्रोटीन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, उनसे क्रोमेटिन मटेरियल बनाते हैं, और वही क्रोमेटिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑक्यूपाई करती है. सो दिस इज all about the detailed structure of plant cell, its component, their functions. These cells group together to form different type of tissues, which can be permanent tissues, simple permanent tissues, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, complex permanent tissues. These tissues in different proportion present in different structure of plant. It can be plant stem, plant root and plant leaf, which form the entire plant. कि यही सेल साथ में मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, और वो टिश्यूज अलग अलग प्रोपोर्शन में अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं प्लांट में, जो पूरी प्लांट बॉडी की फंक्शनिंग कंट्रोल करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.